Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do Master Vocab series, and this is level 2 and this is revision 4 of the series. Okay, so let us begin with the today's session. Okay, so this is the first exercise, and there is a word given over here, and after a dash there are 4 options given over here. Okay, so we have to pick up the right word which is the meaning of the first word. Okay, so let us begin with the फर्स्ट वर्ड. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज एप्रोबेशन. ओके, सो एप्रोबेशन के बारे में हमने पढ़ा था क्या कि क्या हो सकता है, अपीयरेंस, इंक्वायरी, प्रूफ और अप्रूवल. तो क्या है वो अप्रूवल है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा आर्टिफिस. ओके, तो आर्टिफिस को हम कैसे समझते हैं, इज इट ट्रेजर, डिवाइस, सिग्नल और पेंटिंग. ओके, सो व्हाट इज दैट, इट इज अ डिवाइस. ओके, नेक्स्ट इज कॉस्टिक. ओके, एंड द ऑप्शंस आर टॉकेटिव, serious, sarcastic and costly. Okay, so here it will be sarcastic. Okay, the next word is consummate. Okay, and the options are similar, unlike, matching and perfect. Okay, so what does it mean, it means being perfect. Okay, the next word is derision. Okay, so the options are praise, mockery, blame and dread. So what is its meaning, its meaning is mockery. Okay, the next word is diminutive. Okay, and the options are huge, bright, dim and tiny. So the right answer will be tiny. Okay, the next word is eccentric. Okay, and the options are odd, excitable, extreme and doubtful. Okay, so हमने eccentric के बारे में क्या पढ़ा था, something which is out of the ordinary. Okay, so it is odd. Next word is ponderous, and the options are revolving, unusual, heavy and thoughtful. Okay, so whenever you are pondering, it means you are being what, you are being heavy. Okay, next word is solace. Okay, and the options are joy, sorrow, loneliness and comfort. Okay, so what is the right meaning of solace, it is comfort. Okay, the next word is staid, and the options are sedate, strange, helpful and tired. Okay, so what is the right meaning, it is sedate. Okay, the next word is sloth. Okay, and sloth के बारे में हमने क्या पढ़ा था, sloth बियर के बारे में, और sloth का बियर का मैंने एग्जांपल क्यों दिया था, because it is very slow. Okay, तो हमारा पहला ही वर्ड क्या है हमारा slowness, so this will be your right answer. Okay, the next word is preposterous. Okay, and the options are unusual, absurd, prepared and possible. Okay, so preposterous मतलब क्या होता है, absurd. Okay, the next word is impediment. Okay, and the options are illness, meaning, improvement and hindrance. Okay, so impediment मतलब क्या होता है, किसी तरीके का रुकावट, hindrance. Okay, next word क्या है, devout, and the options are religious, poor, empty and precious. तो devout के बारे में हमने क्या पढ़ा था, devotee जो है इसी से आता है, so it will be religious. religious लोग ही तो devotee होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ब्लिथ. सो द ऑप्शंस आर स्मूथ, थिन, हैंडसम एंड गे. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, गे होगा. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बॉइस्टरस. ओके, एंड ऑप्शंस आर स्ट्रॉन्ग, नॉइजी, ब्रेव एंड टिमिड. ओके, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, समथिंग विच इज नॉइजी. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइस्टरस. नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट का क्या मीनिंग होता है, द ऑप्शंस आर मैसेज, बुक, एक्सट्रैक्ट और लेटर. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, एक्सर्प्ट का मीनिंग एक्सट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा, फर्वेंट. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होगा सही, द ऑप्शंस आर इंटेंस, फियरफुल, फ्रेजाइल एंड लाउड. ओके, तो क्या होगा, फर्वेंट मतलब इंटेंस. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, एंड वी हैव टू fill in the blanks with the most suitable words from those listed below. तो हम नीचे देख रहे होंगे कि हमारे पास कितने 10 वर्ड्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 10 ब्लैंक्स हैं, तो हमें सही वर्ड को सही ब्लैंक में हमें डालना है. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हेयर वर्ड वाज अ डैश यूथ हु शोड नो डैश टू हिज एल्डर्स. ठीक है, तो कैसा यूथ था वो, कैसा था, ही वाज अ नॉन डेस्क्रिप्ट यूथ.
हु शोड नो डिफरेंस, ओके, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस, ओके, टू हिज एल्डर्स, ओके। इन हिज लेटर ईयर्स ही फॉट विथ डैश करेज, तो कैसे करेज के साथ उसने फाइट किया होगा, इनकम्पेरेबल, ओके, अगेंस्ट द नॉर्मन्स हु डिड देयर बेस्ट टू डैश हिम, तो क्या किया होगा, उन्होंने मारने की कोशिश किया होगा, तो इसका मतलब कि दे ट्राइड देयर बेस्ट टू, क्या होगा, इट विल बी exterminate, they tried to exterminate him and his poorly equipped Saxon band with their dash uniforms, तो किस टाइप का यूनिफॉर्म्स उन्होंने पहना होगा, with their disband uniforms, okay, and weapons, okay, मतलब कि उनके पास नहीं यूनिफॉर्म था नहीं वेपन था, ठीक है, उनकी हालत खराब थी, ओके। नेक्स्ट क्या है, his lack of men and arms was dashed by his cunning dash, okay, तो क्या बोल रहा है कि his lack of men and arms was क्या था, it will be an offset, है ना, क्या होगा, offset by his cunning क्या, strategy, okay, he often laughed at the enemy's dash attempts, वो हमेशा क्या करता था, हंसता था एनिमी के क्या, किस टाइप के अटेम्प्ट, टू ले हैंड्स ऑन हिम, मतलब कि उसको कोई छू नहीं पाता होगा, ठीक है, तो इसीलिए वो उन पे हंसता होगा, तो किस टाइप का अटेम्प्ट होगा, इट विल बी इम्पोर्टेंट, ओके, टू ले हैंड्स ऑन हिम। एट लास्ट द नॉर्मन्स मेड डैश ऑफ पीस, तो नॉर्मन्स ने लास्ट में क्या किया, मेड अ overture of peace, but for a long time Hereward's men refused to dash, तो उनके men ने क्या कर दिया, refused to wayward, ओके, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से वर्ड्स कहाँ पे सही से बैठेंगे, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ओके, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और पहले कॉलम में जो वर्ड्स हैं उनका कुछ ना कुछ क्या है, उनको कॉलम 2 के वर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं वो मैच करना है, ठीक है, तो जो सिमिलर टाइप के होंगे या उससे रिलेटेड होंगे उन्हीं को तो हम मैच करेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है हमारा, फिलियल, ओके, या फिलाइल, ओके, तो फिलाइल मतलब क्या हो गया, फिलाइल क्या हो सकता है, इट कैन बी डिवोशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंटल, तो इंसिडेंटल क्या हो सकता है, इंसिडेंटल क्या हो सकता है, इट कैन बी ए सिचुएशन, है ना, इंसिडेंटल कैन बी ए सिचुएशन, ओके। इपोच क्या है, इपोच क्या क्या होता है, मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड ऑफ आवर हिस्ट्री, ओके, समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री, सो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट क्या है, बेन, तो बेन मतलब क्या होता है, बून और बेन हमने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, बेन यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है हमें, बेन ऑफ माई लाइफ, ओके, मेरे लाइफ का बेन, ओके। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस, तो डायग्नोस आप क्या करोगे, सिम्टम्स को डायग्नोस करोगे डेफिनेटली, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, आयरॉनिकल, तो आयरॉनिकल क्या हो सकता है, आयरॉनिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके, गेट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज डी है और इसमें क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द इटैलिक्स वर्ड विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें दो वर्ड्स जो है सिमिलर साउंडिंग है और हमें बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन द बस ब्रोक डाउन वी हैड टू कंसोर्ट और रिजॉर्ट टू वॉकिंग, तो बस जब ब्रेक डाउन हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, एंड वी हैव टू रिजॉर्ट टू वॉकिंग डेफिनेटली, ओके। नेक्स्ट क्या है, द कैप्टन रिपोर्टेड दैट द मोरल एंड मॉरल ऑफ हिज मेन वाज एक्सेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने आप ब्रेव हैं, मतलब वो आपका किससे पता चलता है, मोरल से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द डैश सॉरी द मोटिव एंड मोटिव ऑफ द क्राइम वाज ऑब्वियसली रॉबरी, तो मोटिव क्या होता है, किसी आकृति जो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या साइन को हम बोलते हैं मोटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्राइम का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है,
आई एम नॉट अवर्स एंड परवर्स टू टेकिंग माई हॉलीडेज इन जुलाई बट आई रियली प्रेफर अगस्त। बोल रहा है कि मैं एवर्स या परवर्स नहीं हूँ टेकिंग माई हॉलीडेज इन जुलाई बट मुझे अगस्त प्रेफर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अवर्स होगा या परवर्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परवर्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, when you are driving a car even a momentary and momentous lack of attention is dangerous। ठीक है, तो momentous तो क्या होता है, एक कोई substantial moment of life उसमें momentous करते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, momentary मतलब क्षणिक भर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर momentary lack of attention अगर होता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। अगर आप उस ध्यान नहीं देते हो क्षणिक भर के लिए भी तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, यू कैन हिट द कार, ओके, एंड you can meet with an accident। okay, so it is very dangerous। next क्या है, in a free country a man cannot be imprisoned unless he has perpetrated and perpetuated some crime। तो perpetrated होगा या perpetuated होगा, definitely perpetrated होगा क्योंकि यहाँ पे क्राइम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और perpetrated क्या होता है, perpetrator का भी मैंने बताया था कि perpetrator कौन होता है, जो क्राइम करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सरसाइज ई है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस ईच वर्ड और एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स बाय अ वर्ड फ्रॉम लेसन 10, 11 और 12। ओके, तो हमें वर्ड को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो वर्ड हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, यू मस्ट नो द फर्स्ट, क्या है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है शायद। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एरोनॉटिक्स नहीं होगा, एरोनॉटिक्स मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओके, सॉरी, दिस इज राइट, मेरा देखने में गलती हो गया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा होगा, उसको हम देखते हैं। तो हमारा क्या है, यू मस्ट नो द फर्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें वन वर्ड देना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ एरोनॉटिक्स इफ यू विश टू बिकम अ पायलट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप्स के लिए हम क्या वर्ड हमने पढ़ा है, रूडिमेंट्स मतलब बेसिक। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैक ऑल द थिंग्स टू ईट इन द वाटरप्रूफ बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन कौन सा पार्ट है, हमें थिंग्स टू ईट, तो थिंग्स टू ईट के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, कमेस्टिबल। ओके, जो खाद्य पदार्थ संबंधी जो बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कमेस्टिबल। ओके, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नर्स ऑफिशियल ऑर्डर पुट एन एंड टू स्मगलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके लिए हमें वन वर्ड बताना है। तो ऑफिशियल ऑर्डर के लिए वन वर्ड क्या होगा, इट विल बी एडिक्ट, है ना, इट विल बी एडिक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्या है, द टीडियस वर्क ऑफ वॉशिंग सो मेनी डिशेज इज लाइटेंड बाय योर चेयरफुल असिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमें किसके लिए वन वर्ड हमें बताना है, टीडियस वर्क के लिए हमें बताना है। ओके, तो टीडियस वर्क के लिए हमने क्या वर्ड हमें पढ़ा है, इट इज पॉन्डरस। ओके, इट विल बी पॉन्डरस। ओके, नेक्स्ट इज आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्राइब इन वर्ड्स के लिए हमें वन वर्ड देना है, आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स द हीरोइज्म ऑफ द फायरमैन। ओके, तो डिस्क्राइब इन वर्ड्स के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सोचना है हमें, तो इट विल बी पोर्ट्रे। ठीक है, आई कैनॉट पोर्ट्रे, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लेंथी डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे किसके लिए हमें वन वर्ड हमें देना है, मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेंथी डॉक्यूमेंट। ओके, तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारा, मीनिंग के लिए क्या होता है, परपर्ट। ओके, इट हियर इट विल बी परपर्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई मैनेज टू गैदर विद डिफिकल्टी अ लिटिल न्यूज ऑन माई रिलेटिव्स इन यूरोप। ओके, तो यहाँ पे वन वर्ड किसके लिए देना है, गैदर विद डिफिकल्टी। तो गैदर विद डिफिकल्टी के लिए हम क्या वर्ड हमने पढ़ा है, ग्लीन। ओके, नेक्स्ट क्या है उस पे चलते हैं। ओके, सो हियर इट इज, शी आउट टू रिप्रूव द चाइल्ड फॉर स्पीकिंग सो लाउडली। ओके,
तो यहाँ पे हमें किसके लिए वन वर्ड बताना है? रिप्रूव के लिए। तो क्या होगा? शी आउट टू रिप्रूव के लिए क्या वर्ड हमने पढ़ा है? एडमोनिश। ओके, here it will be admonish. Next is, weren't you surprised at his lack of interest? Okay, when he heard the exciting news. तो यहाँ पे हमें किसके लिए बताना है? lack of interest के लिए। तो lack of interest के लिए वन वर्ड क्या है? drudgery। ओके, क्या होगा? drudgery। नेक्स्ट क्या है? as new factories are built the town becomes more overcrowded। तो overcrowded के लिए हमने क्या वर्ड हमने पढ़ा है? it is congested। ओके, नेक्स्ट क्या है? some pirates used to display boastfully their black flags as they sailed the seas। ओके, तो यहाँ पे हमें किसके लिए बताना है वन वर्ड? डिस्प्ले बोस्टफुली के लिए। ठीक है, तो डिस्प्ले बोस्टफुली के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे? फ्लॉन्ट। ओके, फ्लॉन्ट आप कब करते हो? जब आपके पास कुछ होता है और दूसरे के पास नहीं होता है, तब आप फ्लॉन्ट करते हो। नेक्स्ट क्या है? लायन हार्ट वॉज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन विच वॉज अप्लाइड टू रिचर्ड वन। ओके, तो सुटेबल डिस्क्रिप्शन के लिए हमें वन वर्ड देना है। ओके, तो सुटेबल डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या वन वर्ड दे सकते हैं? इट विल बी एपिथेट। ओके, नेक्स्ट इज, आफ्टर एग्जामिनिंग द पेंटिंग्स द connoisseur declared they were not genuine works of Krieghoff। ओके, तो यहाँ पे हमें जेन्युइन वर्क्स जो है उसके लिए हमें देना है वन वर्ड। तो जेन्युइन वर्क के लिए हमने वन वर्ड क्या पढ़ा है? ऑथेंटिक। ओके, नेक्स्ट क्या है? द डॉक्टर बिलीव्स दैट द ट्यूमर इन हिज स्टोमक इज नॉट लायबल टू कॉज डेथ। ओके, तो जब कॉज डेथ होगा तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है? कॉज डेथ के हमें वन वर्ड देना है, तो इट विल बी मैलिग्नेंट। ओके, मैलिग्नेंट मतलब कि समथिंग दैट इज वायरुलेंट। ओके, मतलब जिसकी वजह से बीमार पड़े लोग। ओके, सो here we are done with the today's session। okay, so that's all from my side। thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video। thank you so much।